Hello everyone and welcome to the class. I hope you all are doing very great. You all are at your home and you all are safe. So जिन्होंने अभी तक भी अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो वो फटाफट से कर लें ताकि सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल कर सकें. So before proceeding to the class, I would like to tell you 1, 2, 3 things. So that are सबसे पहले this is a recorded lecture because it's the last day of the year. So let's study as well as enjoy also. It's a very simple topic today that we are going to discuss. So please don't feel that you will be leaving the class. I will be there with you. ठीक है. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज. मैं यही हूं, मैं आपके सारे मैसेजेस को रिवर्ट करूंगी. वन थिंग. Second thing, today is the last day of the year. So let's enjoy this as well as let's study also. So please don't switch off the classes and do go through the lecture once. Before that, I would like to introduce myself Abhilasha Bareja, your business studies educator at Unacademy. Welcome each and everyone to the class. I completed my graduation BCom from Delhi University. Post-graduation MBA, Finance as a major and Marketing as a minor from IPM College. I have also done B.Ed from MGU. I am having experience of more than 7 years for grades 11th and 12th business studies. Along with that, I also take subjects like Business Organization Management, Human Resource Management, and Business Communication for graduation and post-graduation students. Also, I take up a subject of Business and Commercial Knowledge for CA profession students. Right now, I'm associated with two of the very known academies that are Color Commerce Academy and Sign Tutorials. BREJA10 is my referral code. So you can use this referral code to purchase any of the subscription, either Plus or Iconic, depends on your choice. With this particular referral code, you can easily get a discount of 10%. One more thing, this is not only the referral code, this is actually the key to your success. ये आपकी एक success के लिए key है. This is a key which you can use to get maximum of the benefits at a very big platform of Unacademy. आप इस की को यूज कर सकते हैं. यूज दिस कोड, यूज दिस एज अ की, और आप इसको आगे फर्दर नॉट इवन इन 12th के बाद भी इसको यूज कर सकते हैं. किसी भी कोर्स के लिए पढ़ने के लिए, क्लैट की कोचिंग लेने के लिए, सीए की कोचिंग लेने के लिए, हर जगह आपकी ये की यूज हो सकती है. So don't skip this point. Go ahead and avail maximum of the benefits. So here we are with the term 2. Term 2 का controlling हमने पढ़ा है. Because बहुत बच्चों का miss हुआ है. So here I am with you, all of you, to give you one shot of controlling. This is the term 2 syllabus that we have already started. So in today's class, we will be covering one shot of this beautiful chapter. छोटा सा है, प्यारा सा है, जल्दी से हो भी जाएगा आज ही. Everything will be taken in the form of case studies as well. Lots of case studies awaiting for all of you. So Commerce 365 के बारे में भी आप सब जानते हैं. हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है. अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं, then you are eligible to get all the notifications and updates for the classes. आपको सारी की सारी notifications और updates मिलती रहेंगी. आपको पता चलता रहेगा कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास है और उस पर्टिकुलर क्लास में क्या करवाया जाने वाला है, ताकि आप सारे टाइम से पहले ज्वाइन कर लें और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल कर सकें. So here we are with the controlling. So are you all ready for the class today? जल्दी से. हूं, यहीं पे ही हूं मैं. I'm seeing each and everyone. So here we go to chapter number 8, that is controlling. एक बहुत छोटी सी पिक्चर बताऊंगी आपको. बस आपको सिर्फ और सिर्फ उस पिक्चर को ध्यान में रखना है. जैसे ही आपने वो पिक्चर अपने दिमाग में बिठा ली, आपको वो पिक्चर समझ आ गई, ये चैप्टर हमारा विद इन सेकेंड्स कंप्लीटेड. हियर आई एम विद दैट पिक्चर. तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? वैसे हम देखा जाए तो कंट्रोल करना. अब ये कहते हैं कंट्रोल किस पे करते हैं? हमें कंट्रोल करना होता है अपनी सारी मिस्टेक्स के ऊपर. जो भी काम करते हुए, जो भी वर्क या टारगेट को अचीव करते टाइम हम
मिस्टेक्स करते हैं हमें उसके ऊपर क्या करना है, कंट्रोल करना है। हमें उन मिस्टेक्स को क्या करने की कोशिश करनी है, मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। कैसे? सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं, सबसे पहले हमारा आता है प्लान्ड परफॉर्मेंस। प्लान्ड परफॉर्मेंस, प्लान्ड परफॉर्मेंस होता है जो हमने सोचा होता है। फिर आता है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस, प्लान परफॉर्मेंस को हम डिनोट करेंगे पीपी से, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम डिनोट करेंगे एपी से। एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है जो असल में हुआ होगा। सपोज हमारी प्लान परफॉर्मेंस है 500 यूनिट्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस है हमारी 250 यूनिट्स। क्लियर? अब सुनेंगे ध्यान से, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो कहलाता है हमारा डेविएशंस। इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा वो क्या कहलाता है, डेविएशन। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या है, 250 यूनिट्स का। अब सुनो ध्यान से, ये जो हमारी डेविएशंस होती हैं ये कभी भी जीरो नहीं होती, ये हमारी सिर्फ रिड्यूस होती हैं। अगर हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है प्लान्ड परफॉर्मेंस से तो हमारी होती है पॉजिटिव डेविएशन। अगर हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है प्लान्ड परफॉर्मेंस से तो हमारी होती है क्या, नेगेटिव डेविएशन। नॉर्मली जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, नॉर्मली जब हम काम करते हैं तो हमारे नेगेटिव डेविएशंस ही होती हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज आपने पेपर दिया, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश का पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, तो आप सबने इंग्लिश का पेपर दिया। सपोज आप सबने सोचा, आप सबने प्लान करा कि यार मेरे तो आएंगे सिर्फ 30 मार्क्स, एक्चुअली में आपके आ गए 35 मार्क्स। आपकी सोच से क्या हुआ, अच्छा हुआ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन प्लान। अब हम अगर इसी केस को उल्टा करते हैं, उल्टा बोले तो सपोज आपने प्लान करे थे 35 मार्क्स, आपके आगे कितने, 30 मार्क्स, तो आपकी क्या हो गया, मूड खराब। मूड खराब यानी कि नेगेटिव। तो यानी कि जब एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है हमारा प्लान परफॉर्मेंस। So these are the two things of actual performance as well as the planned performance. हमारी यहीं से हमारी निकलती है डेविएशन की डेफिनेशन। डेविएशन एक नंबर में आती है कई बारी, डेविएशन। Can anyone want to tell? I am seeing everyone. Can anyone wants to tell the difference between deviation की definition? तो deviation क्या कहता है? The difference between planned and actual performance is known as deviation. क्लियर? अगर आपको ये पिक्चर मेरी क्लियर हो गई है तो यहीं से हमारे बहुत प्यार से निकल आएंगे क्या, स्टेप्स। तो हमारे स्टेप्स का पहला पॉइंट होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। यानी कि जब हम अपने टारगेट्स को सेट करते, जब हम अपने टारगेट्स को सेट करते हैं तो हमारे टारगेट्स दो तरीके से सेट किए जाते हैं। दो तरीके कौन से, एक होता है हमारा क्वालिटेटिव टर्म्स और एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी की फॉर्म में हम सेट कर सकते हैं, यानी कि हमने 500 यूनिट बनानी है या हमने 200 यूनिट बनानी है या हमने 100 यूनिट बनानी है।
क्वांटिटी यानी कि नंबर की फॉर्म में हमारे लिए सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम मिनटों में सेकंड्स में कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी की फॉर्म में सेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हम किसी की मोटिवेशन, हम किसी की गुडविल कभी भी मेजर नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेप आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट यानी कि हम क्या करेंगे, हम एक चार्ट शीट बनाएंगे और हम उसको टाइम टू टाइम हम उसको क्या करेंगे, हम उसको फिल करेंगे, ताकि हम एक रिकॉर्ड रख सकें कि हमने कितने यूनिट्स बना लिए। अब सुनो, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है तो जो कंपनीज होती हैं वो हमेशा सैंपल चेकिंग पर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो रैंडमली निकाल लेंगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी को या प्रोडक्ट को चेक कर लेंगी, क्योंकि उनके लिए हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेकिंग करेंगे, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि ऑर्डर भी छोटा होगा। जब हमारा ऑर्डर छोटा होगा तो हम इजीली उसके एक एक प्रोडक्ट को हम उठाकर चेक कर सकते हैं। हम ये ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी आ रही है, और हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी हम फर्दर इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे दो, एक होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है स्मॉल। हम जो अपनी चार्ट शीट भी बनाते हैं, हम उसको भी वीकली, डेली, क्वार्टरली या मंथली किसी भी बेसिस पर हम फिल भी कर सकते। करेक्ट। थर्ड स्टेप हमारा क्या, फिर हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। यानी कि जहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्चुअली में परफॉर्मेंस हुई होती है उसको करेंगे अपने प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर। और यहां से हमारी क्या निकलती हैं, यहां से हमारी निकलती हैं क्या, डेविएशन। यानी कि फोर्थ स्टेप हमारा क्या हो जाता है, एनालाइजिंग डेविएशन। जब हम अपनी डेविएशंस को एनालाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप हमारा बोर्ड में जरूर आता है। कैसे? एनालाइजिंग डेविएशंस को हम दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सीपीसी और दूसरा होता है हमारा एमबीई। सीपीसी क्या कहता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और दूसरा होता है एमबीई यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब सुनो ध्यान से, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है? हमें KRAs यानी कि की रिजल्ट एरियाज के ऊपर ही क्या करना है, फोकस करना है। सेकंड आता है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, रादर इसको हम खाएंगे, क्योंकि इसका एक नंबर का क्वेश्चन हमारा बोर्ड में जरूर आएगा। इसको हम सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। ये क्या कहता है? ये कहता है इफ यू ट्राई टू कंट्रोल each and
everything in an organization, you end up controlling nothing. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर, आपको स्टेप बाय स्टेप चलकर ही प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी है. आप सबसे पहले एक चीज उठाओगे, उसको ठीक करोगे, फिर आप दूसरी चीज उठाओगे, उसको करेक्ट करोगे. इस तरीके से आप सारा काम करोगे. और फाइनल हमारा लास्ट स्टेप क्या आता है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन. यानी कि हमें स्टेप्स लेने हैं कि फर्दर हमारी डेविएशंस क्या हो सके, रिड्यूस हो. हमारे रीजंस क्या होते हैं? व्हाट आर द रीजंस? कैन एनीवन वांट्स टू टेल व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेविएशंस? हमारे डेविएशंस के रीजंस क्या हो सकते हैं? हमारे रीजंस होते हैं सबसे पहले मैन, फिर आता है मटेरियल, फिर आता है हमारा मशीनरी, फिर आती है हमारी टेक्नोलॉजी, फिर आती है हमारी मोटिवेशन. ये सारे हमारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली में हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकती है, हमारी डेविएशंस यानी कि हमारी गलतियां होने के चांसेस होते हैं. मैन यानी कि हमारे पास लेबर नहीं है, मटेरियल हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है और मार्केट में हमें मिल भी नहीं रहा. मशीनरी, हमारी मशीनरी खराब हो गई है. टेक्नोलॉजी, हमारे पास ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, पुरानी लेटेस्ट मशीनें नहीं है, पुरानी मशीनें हैं. मोटिवेशन, नो वन इज देयर टू गिव अस द राइट पाथ, राइट वे देने के लिए कोई भी नहीं है हमारे पास. हमें कोई ढंग से सलाह नहीं दे सकता, कोई हमें ढंग से मशवरा नहीं दे सकता. दीज आर द रीजंस क्यों हमारे डेविएशंस होते हैं. दीज आर एक्चुअली द रीजंस क्यों हमारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं. होल्डिंग अ क्लास फॉर अ मिनट, प्लीज आस्क इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी प्रॉब्लम. जल्दी से पूछेंगे. क्लियर? यहीं से हमारे निकलते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. सबसे पहला होता है हमारा, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. अगर हमारे टारगेट्स क्लियर है तो हम उनको बहुत इजीली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकते. सेकेंड, इट इज ऑल परवेसिव, यानी कि इट इज रिक्वायर्ड एट all the levels and all the types of organization. Clear? थर्ड स्टेप होता है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो कि कहता है इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. नेवर एंडिंग प्रोसेस है. क्यों ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है? जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी कंट्रोलिंग करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना ही पड़ेगा. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे डेविएशंस ना निकले. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज को परफेक्ट रख सकें, क्योंकि कई चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कई चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती. और लास्ट होता है हमारा फीचर क्या? इट इज अ बैकवर्ड लुकिंग as well as forward looking
प्रोसेस। इसको ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। सबसे पहले वो कहता है बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? कभी भी हम अपनी कंट्रोलिंग करते हैं, कभी भी हम कंट्रोलिंग तभी कर सकते हैं जब हम ये देखेंगे कि पिछले प्रीवियस केस में हमें कहां कहां प्रॉब्लम्स आई थी, हमने कहां कहां पे हमारी गलतियां आई थी, कहां कहां पे हमारी दिक्कतें हुई थी, जहां पे हमारे डेविएशंस अराइज हुए थे। सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे। फर्दर ये फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है, हम फॉरवर्ड लुकिंग क्यों कहते हैं, ताकि हम प्रेजेंट में अपनी डेविएशंस को क्या कर सके, रेड्यूस कर सके। कि हम प्रेजेंट में अपनी डेविएशंस को क्या कर सके, रेड्यूस कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने आपको करवाया है, सबसे पहला या तो आपका बोर्ड में आएगा स्टेप्स का क्वेश्चन, जो कि आता है 99.9%। नहीं तो सेकेंडली स्टेप्स अगर नहीं आता तो एनालाइजिंग डेविएशंस जो है, एनालाइजिंग डेविएशन का पॉइंट, जिसमें हम दो चीजें लेते थे, क्या क्या, सीपीसी और एमबीई, ये आएगा 99.9%। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका बोर्ड में 110% आएगा यार, बी केयरफुल अबाउट इट। और थर्ड अब तक हमने जो पढ़ा उसमें से आएगा फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से ये पॉइंट्स तो आपके फॉर श्योर आएंगे ही आएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन भी जरूर आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको नोट्स में से करवाऊंगी, और नोट्स में से करते हुए हम साथ के साथ अपनी केस स्टडीज भी कंप्लीट करें। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमारे टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प कर। अगर हम प्रॉपरली अपनी कंट्रोलिंग करते हैं तो हम अपने टारगेट्स को और ज्यादा अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अगर हमें पता लग जाता है कि हमारे गलतियां होने के क्या क्या रीजंस है, और अगर हम अपने उन्हीं पर्टिकुलर रीजंस के ऊपर अच्छे से वर्कआउट कर लेते हैं, तो हम अपने गोल्स बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। सेकेंड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। हमारे स्टैंडर्ड्स को अच्छे से मेजर करने में हेल्प कर। ये देखता है कि हमारे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। थर्ड, मेकिंग efficient use of resources. As you all know very well कि हमारे resources क्या हैं, scarce हैं, तो हमें उनको यूज कैसे करना है कि हम उनसे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सके। हमें उनकी वेस्टेज नहीं करनी है, हमें उनको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम उनकी कम से कम वेस्टेज करके अपने टारगेट्स अच्छे से अचीव कर सके। इंक्रीजिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब आप सबको पता है अगर हमारी गलतियां रिड्यूस हो जाती हैं तो एम्प्लॉयज का मोरल क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा, उनको एक मोटिवेशन मिलती है, दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। या इंक्रीजिंग भी कर सकते हैं, इसमें इंप्रूव भी आ सकते हैं। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं काम करने में, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं वो काम करने में, उनको लगता है कि यस वी कैन ऑल्सो अचीव समथिंग। क्यों? क्योंकि उनकी जब रिडक्शंस कम होंगी, उनकी डेविएशंस रिड्यूस हो जाती हैं, तो उनका मोरल ऑटोमेटिकली बूस्टअप होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। वर्क एरिया में ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है,
वर्क एरिया में इजीली हर कोई अपना काम करता है, हर किसी के पास अपने टारगेट्स होते हैं, हर किसी को पता होता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का काम परफॉर्म करना है, सो एज सब अपने अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, सो एज सब अपना अपना काम ही कंप्लीट करते हैं। और लास्ट पॉइंट होता है हमारा फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अभी मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन रहता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता होता है कि हमारा क्या क्या काम है, तो वह सब सारी ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स अपना आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे, सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे ताकि सारे अपने गोल्स को प्रॉपरली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। सब अपने अपने टारगेट्स के ऊपर फोकस करते हैं ताकि हम सारे पर्टिकुलरली हर एक एक बंदा अच्छे से काम कर सके और अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर सके। क्योंकि अगर हम सारे मिलकर काम करेंगे तो बट नेचुरल सारे एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, हमारे रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड लगेंगे, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे, और तो और हमारी डेविएशन भी फॉर श्योर रिड्यूस हो जाएगी, हमारे मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, हम मशीनरी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, हर कोई अपना अपना स्पेशलिटी वाला काम करेगा, तो इजीली हमारा टारगेट्स अचीव रहेंगे और डेविएशंस भी रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट आते हैं हमारे लिमिटेशंस। सबसे पहला आता है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। बहुत सारी बुक्स में हमारी लिमिटेशंस नहीं है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी बुक्स में नहीं है। बट मैं आपसे सिर्फ एक जनरली एक बात कहती हूँ, मैंने कहा चलो अच्छा नहीं भी है, तो हमारी लिमिटेशंस के सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स है। व्हाई टू टेक अ रिस्क। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि मैम जब लिमिटेशंस है ही नहीं तो आप हमें पढ़ा क्यों रहे हो, यही आ रहा है ना, जल्दी से बता दो। तो बच्चों मैं आपको यही कहती हूँ, चलो मैंने मान लिया लिमिटेशंस नहीं है, अगर हम फिर भी सेफ हैंड रह के अगर पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें 4 पॉइंट ही तो एक्स्ट्रा याद करने हैं, तो सो एज वी विल। तो डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये क्या कहता है, हम क्वांटिटी, आई गेस मैंने गलत लिख दिया, क्वालिटेटिव, जस्ट अ सेकेंड, क्वालिटेटिव, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, यानी कि हम क्वालिटी की फॉर्म में नहीं चेक कर सकते, हम कभी भी किसी का मोटिवेशन, हम किसी की गाइडेंस, या हम किसी की गुडविल, या हम किसी की अच्छाई या बुराई कभी भी मेजर नहीं कर सकते। हम क्या कहेंगे, हम ये कहते हैं कि ये अच्छा है या ये गंदा है, हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो 5% अच्छा है वो 10% गंदा है, नहीं कह सकते। तो एज कि हम यहाँ पर भी क्वालिटी की फॉर्म में सेट नहीं कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को, हम सिर्फ क्वांटिटी की फॉर्म में ही सेट कर सकते। सेकेंड पॉइंट, लिटिल कंट्रोल ऑन, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। सारा का सारा इंटरनली होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। कैसे, मैंने आपको बताया था हमारे रीजंस क्या होते हैं, मेन, मटेरियल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी या मोटिवेशन, ये सारे रीजंस होते हैं हमारे डेविएशंस के। तो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिपेंड करता है, बाहर का कोई भी ऐसा रोल नहीं है, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिपेंड करता है। थर्ड, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। कई बार एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा रेसिस्ट कर जाते हैं, नहीं करते, वो चेंज करना ही नहीं चाहते, वो ऑल्टरेशंस नहीं करना चाहते, वो किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते। एंड लास्ट इज कॉस्टली अफेयर, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है।
कॉस्टली बोले तो क्योंकि जब भी इसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, हम कभी भी अगर डेविएशंस कर रहे हैं, हम कभी भी डेविएशंस कर रहे हैं, तो हम कभी भी आगे बढ़ने से पहले हमें हमेशा प्रीवियस ईयर की चेक करनी पड़ती है। जब भी हम प्रीवियस ईयर की चेक करते हैं, इट ऑलवेज इन्वॉल्व सर्टेन टाइम एज वेल एज द कॉस्ट, क्योंकि हम हमेशा ये इसलिए चेक करते हैं ताकि हमने जो पीछे हमारी गलतियां आई हैं वो हमारी आगे रिपीट ना हो। क्लियर? हमारे इसमें एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन planning and controlling. This topic is not in our syllabus, so I am not touching that topic. Clear? Any doubts still here? jaldi se, any doubts? Feel free to drop a message jaldi se. Clear? तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं अपना इजीली। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग रेफर्स टू द कंपैरिजन ऑफ सेंट्रल परफॉर्मेंस यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, और उसके बाद हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं जहां जहां भी हमें जरूरी है। जहां जहां पे भी हमारी डेविएशंस आती हैं एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में, वहां वहां हम अपने करेक्टिव एक्शंस लेंगे ताकि हम अपनी उन डेविएशंस को खत्म कर सकें। तो कंट्रोलिंग की डेफिनेशन इन द वर्ड्स ऑफ नूड्स एंड ओडॉनल क्या कहती है? मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standards and the corrective of deviations to assure attainment of objectives according to plan. सबसे पहले हम मेजर करेंगे कि हमारा क्या काम है, क्या काम नहीं है। फिर जो हमारी डेविएशंस निकलेगी, उन डेविएशंस के अगेंस्ट हम लेंगे प्रॉपर करेक्टिव एक्शन। उन डेविएशंस के अगेंस्ट लेंगे हम प्रॉपर करेक्टिव एक्शंस, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने अपने प्लान्स को सेट किया है। जो भी हमने अपने प्लान सेट किया है, उन्हीं प्लान्स के अकॉर्डिंगली हम अपने गोल्स भी इजीली अचीव कर सकते। फीचर सबसे पहला, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर हमारे टारगेट्स क्लियर होंगे तो हम इजीली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उनको अचीव भी कर सकते। It is a pervasive function. It is required everywhere at all the levels, at all the types of the organization. हर जगह हमें कंट्रोलिंग की जरूरत है। किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कोई भी है, पब्लिक है, सेंट्रल है, जो भी है, हर जगह हमें कंट्रोलिंग की जरूरत है। इसे क्यों? हम कोई भी काम करते हैं, हमारी गलतियां होने के चांसेस 100% रहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको समझा रही थी, मुझे लिखना था क्वालिटेटिव और मैंने लिख दिया क्वांटिटेटिव, गलती हो गई। मैं आगे इस चीज का ध्यान रखूंगी कि फर्दर मैं कभी ये चैप्टर कराऊं तो वो गलतियां मेरी रिड्यूस हो सके। हम हमेशा अपनी गलतियों के ऊपर फोकस करते हैं, तो आज कि हर किसी से गलती हो सकती है, सो कंट्रोलिंग हर जगह ही हमें रिक्वायर्ड होती ही होती है। इट इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। सबसे पहले ये फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि कभी भी फर्दर प्लान बना रहे होते हैं, हमें हमेशा देखना चाहिए हमने पिछली बार कहाँ गलतियां करी थी। मैं आगे कभी भी ये चैप्टर दोबारा रिपीट करवाऊंगी, मैं हमेशा जरूर एक बार गौर करूंगी कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां करी थी, ताकि मैं फ्यूचर में फिर जब दोबारा चैप्टर कराऊंगी तो मैं उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना कर पाऊँ, ताकि मेरी रिडक्शंस यानी कि डेविएशन होने के चांसेस रिड्यूस हो सके। और ये बैकवर्ड लुकिंग क्यों होती है? क्योंकि हम हमेशा एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं हमारे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम क्यों अपने टारगेट्स को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पा रहे, कहाँ हमारे रिसोर्सेज ज्यादा लग रहे, कहाँ एक्चुअली में हमारी गलती हो रही, और वो रीजंस क्या है हमारी गलतियां होने के। लास्ट होता है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम कभी भी अपनी गलतियां खत्म नहीं कर सकते हैं। सपोज मैंने अभी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में गलती करी थी, शायद आगे कहीं और कर लूं, हम कभी भी नहीं कर सकते। सो एज हम कभी भी काम करते हैं, हमेशा हमें कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, लेकिन पड़ेगी तो जरूरी।
So let's have a look over the case study. Let's see, बहुत टाइम बाद केस स्टडीज कर रहे हैं अब हम चैप्टर में। चलिए सबसे पहले केस स्टडी आती, हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या करना चाहता है। So identify the function of management being performed by Anubhav by conducting tests to assure for the quality of the garments manufactured in his export house. Briefly explain the term deviation. Give 3 advantages of training to the employees. यानी कि हमें ये चैप्टर 6 यानी कि स्टाफिंग से इंटर रिलेटेड है, तो ध्यान से। Anubhav has set up an export house after completing his masters in fashion design. As the quality of the garment depends on the quality of raw materials used, he assures that the fabric meet the requirements by conducting a series of tests for the fabrics like shrinkage test, testing color fastness to washing, color fastness to light, color fastness to perspiration, etc. through laboratory tests. Later on, at the production areas, fabric inspection is also conducted by stopping the production process. The test helps to detect the deviations and also take corrective action. Moreover, he ensures that complete training about production work was given to every worker at the time of joining his export house. In context of the above case, सबसे पहले हमारा function कौन सा हो गया? Yes, it's correct. It's controlling. So what do you mean by the term deviation? Deviation क्या कहता है? It's the difference between planned performance and actual performance. तो हम क्या कहते हैं? Deviation. और 3 एडवांटेजेस जब हम एम्प्लॉइज को देते हैं, क्या होता है? सबसे पहले तो वो सीखते हैं अच्छे से लर्निंग, यानी कि सिस्टमैटिक लर्निंग। और क्या होता है? इससे एम्प्लॉइज का मोरल बूस्टअप होएगा। और थर्ड, एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। Correct? Next we have importance of controlling, accomplishing organizational goals. कंट्रोलिंग फंक्शन हमेशा हमारी हेल्प करता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर सकें। कैसे? जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ हमारा फोकस उन्हीं पर्टिकुलर टारगेट पे होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी कोई भी गलती ना हो। तो आज हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें, जिससे हमारे डेविएशंस रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाए। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, अगर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल सिस्टम है जहां पे वो ये देखता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, यानी कि जो प्लान परफॉर्मेंस सेट करी जा रही है वो ऑर्गेनाइजेशन को मैच कर रही है या नहीं, और साथ ही वो ये देखता है कि जो हमने सेट किया है क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं या नहीं, तो हम इजीली अपने डेविएशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आज एवरीवन नोज हमारे रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो हमें हमेशा अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि हम उनकी वेस्टेज ना कर सकें। हमें हमेशा अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि हम उनकी वेस्टेज बिल्कुल भी ना कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स उनसे ले सकें। improves the employee या improving the employee motivation। अगर हम प्रॉपरली काम कर रहे हैं, अगर हमने पहले ही कंट्रोलिंग मेजर्स चेक कर लिए हैं, अगर एम्प्लॉय को ये पता लग गया है कि कहाँ कहाँ हमारी गलतियां होने के चांसेस हैं और हम उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर ऑलरेडी वर्कआउट कर लेते हैं, तो एक एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल बढ़ जाए।
जब भी एम्प्लॉय को लगता है कि मैं अपने रिडक्शंस पे जा रहा हूं, यानी कि मैं अपनी डेविएशंस को रिड्यूस कर रहा हूं, तो बट नेचुरल वहीं पर ही उनका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, एंश्योर्स प्रॉपर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम है तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर और डिसिप्लिन का एटमॉस्फेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इजीली चेक करते रहेंगे अपने एम्प्लॉयज को कि वो कोई गलत काम ना करें, कि वो कोई थेफ्ट, फ्रॉड, इस तरीके का कोई भी काम नहीं कर रहे। वो पूरा का पूरा फोकस ऑर्गेनाइजेशन के ही गोल्स को अचीव करने पे लगा रहे हैं। तो एज वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑर्डर और डिसिप्लिन की फ्लो हो जाती है। लास्ट होता है हमारा फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, यानी कि जब सारे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, जब सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए लगेंगे, जब सबका टारगेट एक ही होगा कि हमें डेविएशंस को रिड्यूस करना है और अपने टारगेट्स को ही अचीव करना है, तब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर गोल की तरफ भागेंगे तो हम अपने टारगेट ज्यादा अच्छे से अचीव करेंगे। तो एनी डाउट स्टिल हियर? जल्दी से पूछेंगे इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स। Doubts, please. There. So let's have a look over the case study. Explain briefly any 2 points of importance of controlling function. Raghav started a takeaway eating joint in a nearby market. His business was doing well. He ensured that the food was properly cooked, a standard taste was maintained, packaging of food was done effectively, and the orders were executed on time. But unfortunately, he met with an accident and was advised 3 months bed rest. In his absence, his cousin Rohit took charge of his business. When he resumed his work after 3 months, he realized that his clientage has dropped. The people were not happy with the services as the quality of food has deteriorated and the delivery time for orders has increased considerably. All this was happening because most of his previous staff had left as Rohit used to adopt a very strict and authoritative approach towards them. So हमें 2 points of importance बताने हैं and that 2 points of importance are, सबसे पहले judging the accuracy of standards, and secondly improving employee correct. Next, limitation, सबसे पहला difficulty in setting quantitative standards, sorry qualitative, यानी कि क्वालिटी की फॉर्म्स में हम सेट नहीं कर सकते. लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर के ही फैक्टर्स पे कुछ नहीं होता, इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर ही पूरी की पूरी कंट्रोलिंग डिपेंड करती है. रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, कई बार एम्प्लॉयज बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में इंटरफेयर कर लेते हैं, हमेशा अपनी राय देते हैं. कॉस्टली अफेयर, इसमें हम एक और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज वेल. कॉस्टली अफेयर सबसे महंगा अफेयर पड़ता है. क्यों? ये इसलिए हमें कॉस्टली पड़ता है बिकॉज हमें हमेशा काम करने के लिए प्रीवियसली भी देखना पड़ता है, और जो छोटी फॉर्म्स होती हैं वो कभी भी प्रॉपर इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम को नहीं लगा सकती हैं, वो कभी भी इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं कर सकती हैं, जिसकी वजह से कई कंपनीज कर पाती हैं और कई कंपनीज नहीं कर. ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है, क्योंकि कभी भी हम अपना फर्दर आगे प्लान कर रहे होते हैं, हमें हमेशा ये चेक करना पड़ता है कि प्रीवियसली जो हमने काम किया था क्या वो सही था या नहीं था, हमारे कहाँ कहाँ पे गलतियां होने के रीजंस बने हैं, ताकि हम उन गलतियों को आगे फर्दर रिपीट ना कर सके.
So here is the controlling process for all of you, जिसका एक क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट करें। क्वेश्चन दो फॉर्म में आ सकते हैं हमारे, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो हमारा यही होता है कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें आता है, दिख नहीं रहा होगा आपको, का क्वेश्चन हमारा दो फॉर्म में आ जाता है। सबसे पहला आप एक्सपेक्ट करो कंप्लीट प्रोसेस, और दूसरा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एनालाइजिंग डेविएशन। करेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि जब हम अपने टारगेट्स को सेट करते हैं। टारगेट्स हम अपने दो फॉर्म्स में सेट करते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव फॉर्म। क्वालिटी की फॉर्म में सेट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी किसी का मोटिवेशन, गुडविल, अच्छाई, बुराई कुछ भी चेक नहीं कर सकते, हम उसको कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। हम क्वांटिटी की फॉर्म में हमेशा सेट कर सकते हैं, हम हमेशा ही देख सकते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटीज बनानी है, 100, 200, 500, 1000, 2000, कितनी क्वांटिटीज हमें सेट करनी। सेकंड होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे हम एक चार्ट शीट बनाते हैं और उस चार्ट शीट में हम हमेशा अपने लिखते जाते हैं। यहां पर भी हम उसको चेक भी करते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। इन केस अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे हम सिंगल प्रोडक्ट को भी चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। हम ये ध्यान से देखते हैं कि क्या जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कहाँ पे एक्चुअली में दिक्कत परेशानी आ रही है जो नहीं हो रही। और अगर हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जहां हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहां हम हमेशा ही सैंपल चेकिंग पे जाते हैं, यानी कि हम रैंडमली एक एक प्रोडक्ट को उठाएंगे और इस प्रोडक्ट को हम चेक करते हैं कि क्या वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो। थर्ड होता है हमारा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, जहां पे हम कंपेयर करते हैं किसको, प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे किससे, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारी क्या आती हैं, हमारी आती हैं डेविएशंस। वो डेविएशंस क्या होता है हमारा नेक्स्ट है, उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो हमारा कहता है हमें की रिजल्ट एरियाज के ऊपर फोकस करना है, यानी कि KRAs के ऊपर फोकस करना है, ताकि हम अगर उन्हीं पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर फोकस करेंगे। की रिजल्ट एरियाज होते हैं हमारे काम करते हुए कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एरियाज होते हैं जहां से 100% रिजल्ट निकलने के चांसेस होते हैं। तो हमारा फर्स्ट फॉरमोस्ट टारगेट होता है कि हम उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे, कि जहां से अगर हमें लग रहा है हमें रिजल्ट मिल रहा है, हम सबसे पहले उसको ऊपर फोकस करके अपने रिजल्ट्स को इजीली सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा होता है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। ये किसके ऊपर फोकस करता है, ये होता है इफ यू ट्राई टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेटर है कि हमें एक एक करके स्टेप्स लेने हैं, ताकि हम एक एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस कर सकें, एक एक पर्टिकुलर चीज को रेक्टिफाई कर सकें, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के सारे टारगेट्स अच्छे से अचीव। और लास्ट होता है हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जहां जहां पे भी हमारी गलतियां आ रही हैं वहां वहां हम प्रॉपरली करेक्टिव एक्शंस लेंगे, ताकि जो हमारी एक बार गलतियां हुई हैं वो फ्यूचर में हमारी गलतियां रिपीट ना हो सके, ताकि फ्यूचर में हमें फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर परेशानी ना आए जिसकी वजह से हमारे टारगेट्स इनकम्प्लीट या इनएप्रोप्रिएट ही रह जाए। एनी डाउट्स टिल हियर? एनी डाउट्स? क्लियर? Here are some reasons जो हमारे डेविएशंस होने के हैं। सबसे पहला होता है डिफेक्टिव मटेरियल। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मटेरियल को अच्छा ले लेना चाहिए। डिफेक्टिव मशीनरी, अगर मशीनरी हमारी खराब है तो नई मशीनरी ले लेनी चाहिए। ऑब्सोलीट मशीनरी या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, पुरानी हो गई है
तो हमें उसको नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर लेना चाहिए ताकि हम एनवायरमेंट में हैंड टू हैंड कोप अप करके चल सके। डिफेक्टिव प्रोसेस, अगर हमारे काम करने का तरीका खराब हो गया या पुराना हो गया तो हमें उसमें चेंजेस करने चाहिए ताकि हम लेटेस्ट तरीकों के साथ काम कर सकें। पुअर वर्किंग कंडीशंस, अगर हमारी कंडीशंस खराब हैं, हमारे काम करने का ढंग खराब हो चुका है, तो हमें उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। और लास्ट होता है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन, जब हमें कोई प्रॉपर मोटिवेट नहीं कर रहा, जब हम कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड करे जा रहे, उनको प्रॉपर उनके तरीके का काम नहीं दिया जा रहा जो एक्चुअली में वो डिजर्व करते हैं। तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हमारे डेविएशंस होते हैं। अगर हम इनके ऊपर टाइमली वर्कआउट कर लेते हैं, टाइमली वर्कआउट करेंगे, तो फर्दर हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी। और साथ ही यहाँ पे अपना लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल, जो क्या कहते हैं, अगर हम इकट्ठे एक ही बारी में इन सबके ऊपर फोकस करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें स्टेप बाय स्टेप जाके एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को उठा के उस पर फोकस करना है ताकि हम ओवरऑल सबके ऊपर अच्छे से काम कर सकें। So here we have certain case studies as well. So let's see what these case studies demand from us. So सबसे पहला क्या कहता है, if anything goes wrong with the performance of key activities, the entire organization suffer. Therefore, the organization should focus on them. यानी कि अगर हम की एक्टिविटीज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो जाता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, की रिजल्ट एरियाज के ऊपर, यानी कि क्या हो गया हमारा आंसर, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। जो क्या कहता है हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, की रिजल्ट एरियाज के ऊपर फोकस करना जरूरी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल adopted by the company. State the belief underlying this principle. प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल से ही हमें पता लग गया है एक्चुअली में क्या हमारा आंसर है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल से। लेकिन फिर भी हम एक बार इस क्वेश्चन को केस स्टडी को जरूर पढ़ेंगे। Saurashtra is a company involved in the export of indigenous food products like chutneys and pickles. It has tied up with the small farmers in various states for sourcing of fruits and vegetables. In this way, it helps the small farmers to sell their produce at reasonable rates. The company follows a practice where only significant deviations from a budget or plan are brought to the attention of management. The degree of deviations allowed in different categories in the budget are well defined in advance, along with the appropriate levels of management who will respond to the deviations in question. For example, a deviation of 20,000 or more in purchase cost will be reported to the concerned department manager. So the principle of control क्या आएगा हमारा, management by exception। जो क्या कहते हैं उसका बिलीफ क्या है, कहते हैं इफ यू ट्राई टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। क्लियर? नेक्स्ट, identify the step taken by Hirsch that is related to one of the functions of management. So Hina Sweet is a renowned name for quality since 1935. Hirsch, the owner of Hina Sweets, was worried as the sales had declining during the last 3 months. When he inquired about the sales manager reported that there were some complaints about the quality of the sweets. Therefore, Hirsch ordered for sample checking of sweets. यानी कि उसने क्या किया,
सैंपल चेकिंग पे गया, तो हमें समझ आ गया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारा इसमें, कंट्रोलिंग। और सैंपल चेकिंग पे जा रहा है तो यानी कि क्या आ गया हमारा पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्लियर? नेक्स्ट, identify the function of management discussed above. State the steps in the process of the function identified which are discussed in the above paragraph. AS Limited is a large company engaged in assembling of air conditions. Recently, the company has conducted the time and motion study and concluded that on an average, a worker can assemble 10 conditions in a day. The target volume of the company in a day is assembling of 1000 units of air condition. यानी कि 1000 करना है, यानी कि ये क्या हो गया, setting performance standards. The company is providing attractive allowances to reduce the labor turnover and absenteeism. All the workers are happy. Even then, the assembling of air conditions per day is 800 per unit. यानी कि measurement of actual performance. To find out the reason, the company compared actual performance of each worker. Compare किया यानी कि क्या हो गया, analyzing deviation, comparing actual performance with the standards. Compare किया यानी कि comparing actual performance with the standard. Or observe through CCTV that some of the workers were busy in gossiping. यानी कि उन्होंने क्या किया, analyzing deviations. तो हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया, फंक्शन हो गया हमारा क्या, कंट्रोलिंग. तो हमारे यहाँ पे 4 स्टेप्स टेक ओवर करे गए हैं. सबसे पहले फंक्शन तो हो गया हमारा कंट्रोलिंग, उसके अलावा के हमारे 4 स्टेप हो गए. सबसे पहले उसने अपना टारगेट सेट किया 1000 का सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. वो बना कितने रहे थे, 800, यानी कि मेजर हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस. उन्होंने रीजन को कंपेयर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ, यानी कि कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड. और बाद में उनको पता लगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपस में ही वर्कर्स गॉसिपिंग करते थे, यानी कि एनालाइजिंग deviations. Clear? Any doubts? Next, taste buds. Explain the function of management being performed by the quality assurance team of taste bud. Explain the statement, records and analysis the deviations and takes the necessary corrective action. So, Taste Buds Limited is a company known for manufacturing good quality confectionery products. The automated system of production ensures uniformity in production and quality maintenance. The quality assurance team conducts stringent checks all the stages, records and analyzes the deviations and takes the corrective actions right from the procurement of raw material to its processing, production and packaging. The company has a well-equipped in-house quality inspection cell where confectionery products are tested on various parameters of quality by the team of experienced quality staff. तो फंक्शन तो हमें पता लग ही गया, सीधा सीधा क्या हो गया, कंट्रोलिंग. तो रिकॉर्ड का आ गया मतलब कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स. एनालिसिस आ गया हमारा एनालाइजिंग डेविएशंस. टेकिंग नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस, यानी कि टेकिंग करेक्टिव क्लियर. एनी डाउट? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस
यानी कि 2 फंक्शंस है बच्चों, ध्यान से। Functions of management discussed above. State the 2 steps in the process of each function. अच्छा, 2 फंक्शन है तो हर के हमें 2 स्टेप्स बताने हैं जो यहाँ पे हाईलाइट किए जा रहे हैं। तो ध्यान से, a company was manufacturing LED bulbs which were in great demand. It was found that the target of producing 300 bulbs a day was not met by the employees. On analysis, it was found that the workers were not at fault. ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, यानी कि शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा स्टाफिंग। द कंपनी वर नॉट एबल टू अचीव द सेट टारगेट्स एंड अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स वर नीडेड, यानी कि उसको यही नहीं पता था शॉर्टेज ऑफ वर्कर, यानी कि क्या आ गया एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। To meet the increased demand, the company assessed that approximately 88 additional workers were required. यानी कि क्या हो गया हमारा recruitment, which 8 would work as heads of different departments, 10 would work as subordinates under each heads. The required qualification, job specification were also enlisted. It was also decided that necessary relaxation should be given to encourage women, people from backward and rural area, and people with special abilities to assume responsible positions in the organization. All the efforts were made to match the ability of the applicants with the nature of work. Correct? Analysis कर रहा है, यानी कि क्या आ गया हमारा स्टाफिंग के साथ। अभी तो हमने स्टाफिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। एनालिसिस कर रहा है तो स्टाफिंग के साथ हमारा आ जाएगा कंट्रोलिंग। एनालिसिस हो रहा है तो एनालाइजिंग डेविएशन तो है ही पॉइंट हमारा। इसके अलावा कंपनी वाज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब्स व्हिच वाज इन ग्रेट डिमांड। इट वाज फाउंड दैट द टारगेट इन अ बल्ब वाज नॉट मेट, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है तभी तो हमें पता लगेगा, यानी कि कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। तो हमें 2 स्टेप्स बताने हैं, तो 2 पॉइंट आ गए हमारे स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग के हमारे 2 पॉइंट आएंगे, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड रिक्रूटमेंट, और कंट्रोलिंग का हमारा आएगा कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स और एनालाइजिंग डेविएशन। Any doubt in this question? Please feel free to drop a message if still anyone is having any doubt. Last, name the steps involved in the controlling process which is being discussed in the above lines. What do you understand by critical point control? Explain. How does the controlling function of management helps in accomplishing organizational goals and ensures efficient use of resources? Clear hai? A critical point control CPC approach is followed by McDonald's in the cooking and handling process so that any food safety threat can be prevented, eliminated, or reduced to an acceptable level. Hence, continuous monitoring of activities are undertaken to ensure that the process is right at each critical point control. The main principle followed for cooking at McDonald's is less amount, many times, which can ensure the high quality and high fresh level of the food. For instance, if 4 hamburgers have to be made, a worker cannot cook all the 4 hamburgers at one time. The time figured out for one hamburger is 145 minutes. Moreover, nearly all foods in the McDonald's have the specific holding time. The holding time for hamburger is 10 minutes and for French fries is 7 minutes. It is not sold within that time, it is thrown away. Also, the temperature of the milk sent by the supplier would be around 4 degrees Celsius, otherwise it will be returned. So, स्टेप कौन सा यूज किया जा रहा है? सीधा सीधा वो हमारा सीपीसी के ऊपर फोकस कर रहा है, यानी कि स्टेप कौन सा हो गया हमारा? एनालाइजिंग डेविएशंस। अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की हमें फोकस करना चाहिए अपने की रिजल्ट एरियाज के ऊपर। और थर्ड कह रहा है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, यानी कि हमारे अगर टारगेट्स क्लियर होंगे हम उनको इजीली अचीव कर सकते हैं, और हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड है, तो हमें उनको इस तरीके से यूज करना है कि हम उनकी वेस्टेज ना कर सकें।
So we have come to an end of this. If anyone is having any doubt, please feel free. So tomorrow, that is 1st of January, we are entering to a new year, that is 2022. So all the very happy new year to all of you. Happy, joyful and prosperous year ahead. May all your wishes come true. May all your desires come true. May you achieve lots and lots of success in your life with this new coming year. And we all together should wish to God कि हमारा ये कोविड का टाइम भी यहीं पे खत्म हो जाए. As we are stepping to 2022 now. A very happy and prosperous new year from your own favorite teacher Abhilasha ma'am. So for the further updates with me, I will be posting each and everything on the Commerce 365. Please be updated with me on that Telegram group ताकि आपको मेरे से सारी latest updates notifications मिल सके. Thank you so much. Unacademy की आपको इंस्टॉल करने के बाद वहाँ 2 सब्सक्रिप्शंस आएंगी. The first one is the Plus and the other one is the Icon. मैं आपको प्लस के फीचर्स बताती हूँ. आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं. आपके सारे सब्जेक्ट्स एक छत के नीचे कवर अप किए जाएंगे. आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ रहे हैं. So what you are getting the knowledge is perfect. Regular doubt clearing sessions will be conducted for all of you. Proper कोई भी point topic chapter आपका छूटेगा नहीं. Proper motivation and guidance will be given to all of you. Study material in PDF formats will be provided. Practice test paper जिस भी फॉर्म में आप प्रैक्टिस करना चाहें. लाइव टेस्ट सीरीज ताकि आपको बोर्ड के पैटर्न से फेमिलियर कराया जाए. अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू हैव टू पे 1250 रुपीज फॉर अ मंथ. अगर आप 24 मंथ्स की लेते हैं, यू हैव टू पे 1042 रुपीज फॉर अ मंथ. इसी के साथ अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि BREJA10 यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाए. Please, this is not a code only. This is your key to success. Apply this key to success to fulfill all your dreams. आप यही नहीं 12th के बाद भी आगे बढ़ सकते हो on your own very favorite platform of Unacademy, जहां पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल कर सकते. तो अगर आप आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे ग्रुप में पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होते. साथ ही वो अपने मेंटर के साथ 1-on-1 डाउट्स भी ले सकते हैं. प्रॉपर वीकली रिपोर्ट्स विल बी मेड ताकि उन्हें पता चल सके वेयर दे स्टैंड एट द एंड ऑफ द वीक. अलॉन्ग विद बीइंग इन टच विद देम, उनके मेंटर उनके पेरेंट्स के साथ भी पूरे कांटेक्ट में रहेंगे ताकि उनके पेरेंट्स को भी उनकी रिपोर्ट्स के बारे में बता सके. प्रॉपर स्टडी प्लानर्स विल बी मेड ताकि आपको एक वे मिल सके हाउ वेल यू कैन प्लान योर स्टडी. अलॉन्ग विद दिस आपके प्लस के सारे फीचर्स यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे. अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू हैव टू पे ओनली 2333 रुपीज फॉर अ मंथ. अगर आप 24 मंथ्स की लेते हैं, यू हैव टू पे ओनली 2000 रुपीज फॉर अ मंथ. इसी के साथ अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि BREJ10 यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए. A very special offer is going on. अगर आप प्लस की सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं either for 1 year or for 2 year, तो आपको 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट. ये जो ऑफर है हमारा, ये ऑफर हमारा CBSE की क्लासेस 6 to 12 तक के लिए ही वैलिड है. साथ ही अगर आप पहले 1000 सब्सक्राइबर्स में काउंट किए जाओगे तो यू कैन ऑल्सो गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10% एज वेल. Bugs Bounty, a very special feature organized by Unacademy in which if you see any inappropriate content or data, please go to the description below. A form is provided. You can easily fill the form. If you will be correct and you'll be the first one, you can also claim your prize. हमारे नए बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं मंडे से. इट्स बीन 5 days. आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ के टर्म 2 को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते. So this is the term 2 batch जो हमारा 3 महीने का है. The content of delivery will be in English. इंग्लिश में होएगा पूरी पढ़ाई. ठीक है, ये हमारा मंडे से शुरू हो चुका है ऑलरेडी. प्लीज गो अहेड एंड ज्वाइन द कोर्स. दूसरा हमारा साइंस के बच्चों के लिए है. यहाँ पे हमारा कंटेंट है 3 हिंदी है. हिंदी में यहाँ पे डिलीवरी होगी. साथ ही ये भी हमारा 3 महीने का ही कोर्स है. ये भी हमारा शुरू हो चुका है. गाइज प्लीज डू ज्वाइन दिस. यहाँ पे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो
और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल भी कर सकते। Thank you so much everyone. Don't forget to like, share and subscribe the video. So for the further details, please stay tuned with me on your own favorite Telegram channel, that is Farmers 365. I will be posting all the updates over there. Happy New Year once again. Thank you so much everyone. Bye. Good night. Take care. Enjoy this beautiful last night of the beautiful year. Bye everyone. Good night. Take care.